So in the last lecture, we discussed C tokens till the variables, and today we will discuss data types. Now, when we enter the data into the program, we know that the data is uh, known to us either in the format of numbers, characters, strings, or float, that we know it. We can recognize it. कि this is a decimal number, this is a binary number, or this is the number which is having a floating value, this is the character, everything that we know because we handle that data regularly, and that's why we know. But when we give that data to the system, that system should recognize that data and how to perform the some operations which are intended or which are instructed by the user और द प्रोग्रामर. जो यूज़र इंटेंड करता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होते हुए दिखते हैं. तो ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ कि अगर आपने किसी लिंक के ऊपर यानी किसी वर्ड के फाइल में या फिर एक्सेल के फाइल में या फिर पीपीटी में कहीं पे भी एक आधा ऑप्शंस ओपन किया और उसने बोला कि दिस फंक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, यानी ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से हेडर या फिर फुटर, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो आपको बताता है कि यस, नो, इट्स राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल और राइट नाउ इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल फॉर योर सिस्टम. ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? एनीवन? हेलो? No, sir. Yes, sir. No. Okay. No, sir. Okay. So what I'm trying to tell you that when the software, when the application is completely and properly, not completely, properly installed in your system, that application has a role to provide all the functionalities, right? एक डेटाबेस यानी क्या, जहाँ पे डेटा बहुत सारा स्टोर होता है, उसका एक बेसिक रूल है. डेटाबेस इज हैविंग अ बेसिक रूल. इट विल जनरेट द डेटा कंप्लीटली, 100% डेटा जनरेट करके देगा. अगर आप उससे डेटा फेच करोगे, आप उसमें स्टोर करोगे, ठीक है. दो ही ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे. हम डेटा स्टोर करते हैं और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट रहती तब हम उसको फेच करते हैं, ठीक है, या फिर अल्टर वगैरह करते हैं. सो डेटा विल बी फेच कंप्लीटली और स्टोर्ड कंप्लीटली, राइट. दैट मीन्स 100% और 0%, आइदर होल और नन. एक तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, पूरा का पूरा डेटा स्टोर होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा डेटाबेस में, ठीक है. डेटाबेस इज समथिंग डिफरेंट दैट ऑफ योर हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क अलग है और डेटाबेस अलग है. डेटाबेस हम जब बोलते हैं दैट कंप्लीटली दैट टर्म इज रिलेटेड टू द सर्वर. सर्वर इज नथिंग बट द मेन फ्रेम operating system or mainframe computers, not the operating system, mainframe computers that deals with the servers which are connected to the multiple computers and they provide the services to that multiple computers, right. Multitasking का भी उसमें concept आता है, right. So when we are dealing with a different computers, they will generate the different datas. अलग अलग प्रकार का डेटा वो जनरेट करेंगे. सो इन ऑर्डर टू recognize, in order to find out that which kind of data will be generated by them, so that the output will be formulated in the same data. For that we are having a data types, ठीक है. जनरली टाइप्स क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि उसमें मिक्सिंग ना हो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है. जैसे कैटेगरीज में रहेगा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, that is broadly divided into the group A and group B, two types. Under the group A there are the several sections, 4 sections हैं, A B C D. Now inside the section there are 5 branches, means 5 types. 5 ब्रांच के अलग अलग स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे. CS, IT, EXTC, मैकेनिकल एंड सिविल, right. Now when you enter into the second year, again there is a division. Second year boys girls, one section. Third year final year, right. Again in second year if you have a small project, अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह है
तो जैसे आज हम ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप्स बनाने वाले हैं, 4 लोगों के, 5 लोगों के, 6-7 लोगों के, जो भी एक ग्रुप बनेगा। सो मिनी प्रोजेक्ट जब रहेगा आपको सेकंड ईयर में, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो फॉर्मुलेट अ ग्रुप। दैट मीन्स a complete batch of a 2020 admitted is getting divided into the several types, branch wise, then class wise, group wise, then mini project wise, right? So similarly we are having a data types through which we can collect the data or give the data to the system, that made possible with the help of such kind of a data types. So the C language is having, और C language is rich in its data types, means C language के पास इतने सारे databases है या data types हैं जिसके वजह से multiple types of data, अलग अलग फॉर्मेट में का डेटा जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज उसको हैंडल कर सकते हैं। द वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल allow the programmer to select the type appropriate to need of the application as well as the machine। यानी जो डेटा टाइप्स हैं अलग अलग, वो आपको अलाउ करते हैं कि किस फॉर्मेट में किस प्रकार का डेटा आपको चाहिए या फिर मशीन को चाहिए, सो दैट मेड अवेलेबल दैट फंक्शनैलिटी टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा। मेनी टाइम्स इट हैपन्स दैट कुछ ऐसी फाइल्स आप डाउनलोड कर लेते हो इंटरनेट के ऊपर से, जो ओपन करते करते से ही आपको कुछ ऐसा चाइनीज़ या फिर कुछ अलग ही लैंग्वेज में डेटा दिखता है उसमें। ऐसा हुआ है किसी के साथ? वंस यू डाउनलोड सम फाइल, their file format is not supported by your system, and thus it will generate the some another file format and which is not understood to you। system को तो मे भी understood होता होगा because it is again converted into the binary language, but it is not understood to you। कभी हुआ है ऐसा? Anyone? Can you repeat No, the sir. question? सर एक बार रिपीट करा। क्वेश्चन इज जस्ट लाइक रिपीट। कि अगर हमने कुछ ऐसी फाइल्स डाउनलोड कर दी, वर्ड फाइल है या फिर पीपीटी है या फिर एक्सेल है, कोई भी ऐसी फाइल हमने डाउनलोड की, और वो जब हम ओपन करते हैं तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि उस फाइल में ऐसे ऐसे डेटा होना चाहिए जो हम रीड कर सकें, बट उसमें वो डेटा ही नहीं है, वो अलग ही लैंग्वेज में या फिर अलग ही फॉर्मेट में उसमें डेटा अवेलेबल है। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? नाउ गेटिंग द क्वेश्चन और स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विथ? यस सर झाला आहे। ओके ओके ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर या फिर उस पर्टिकुलर फाइल को रीड करने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स है, सिस्टम लाइब्रेरीज है, वो अगर नहीं है, इन दैट केस व्हाट हैपन, इट विल नॉट रीड इट, मीन्स वो डेटा टाइप उसके पास नहीं है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, सो इट विल नॉट रीड इट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट विल जनरेट द रैंडम एनकोडेड और वी कैन से नॉट एनकोडेड, डिकोडेड लैंग्वेज, ठीक है, उसको हम डिकोडेड लैंग्वेज बोल सकते हैं। एक्चुअली वो लैंग्वेज अंडरस्टूड तो नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग ही फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है, जैसे आप कभी करते हो पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करते हो और वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहता है। कुछ पीडीएफ जो रहते हैं वो लॉक रहते हैं, उनमें लॉकिंग सिस्टम भी आता है कि अगर उसको आप डाउनलोड भी कर लो और उसको फिर वर्ड में कन्वर्ट करो तो वो होता नहीं है, ठीक है, या फिर होगा भी तो अलाइनमेंट और प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी और ही लैंग्वेज में। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो सी कैन सपोर्ट्स रिच डेटा टाइप्स, एंड ये जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसके ऊपर भी सी ने सोल्यूशन दिया है कि इफ़ यू हाउ टू डील विद द मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल डेटाज, in that case we have a multiple data types, you have to use it, and with the help of that you can handle as per the requirement. Now C supports the three classes, mainly or broadly three classes of a data types. First one is the प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप, जिसको हम बेसिक डेटा टाइप हम बोल सकते हैं, देन डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एंड देन
user defined data types. That primary data type, that is fundamental data type, all the C compiler supports 5 fundamental data types, namely as a integer, character, float, double precision and void, right? तो इसमें कौन से आते हैं 5 जो हमने मे बी कुछ प्रोग्राम्स में देखे होंगे. सो फर्स्ट वन इज अ इंटीजर दैट वी नो, एब्सोल्यूट वैल्यू जो रहेगी डेसिमल प्लेसेस के बाद जिसके 0 0 रहता है, दैट इज व्हाट अ इंटीजर वैल्यू. देन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द सिपना, तो सिपना का जो एस है दैट इज अ सिंपल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर. Then floating point, your CET and JEE marks, these are the floating point, the data which is generated, that is a floating point data. Then double precision floating point, जिसको हम बोलते हैं डबल. अब ये थोड़ा सा अलग है. अलग इसलिए है, ये फ्लोटिंग पॉइंट इज हैविंग अ वन रेंज. उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर नंबर है, सो यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ अ डेटा टाइप लाइक अ फ्लोट. बट जैसे आपका सीईटी का स्कोर है, उसमें 7 to 8 डिजिट उन्होंने डेसिमल पॉइंट के बाद लिए थे. जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है उसके बाद के 7 to 8 डिजिट्स लिए थे. सो इन दैट केस इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट विथ अ फ्लोटिंग पॉइंट. सो वी यूज अ डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, उसको हम डबल बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी डबल है एज कंपेयर टू द फ्लोटिंग नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. Then the void. The meaning of a void is, in case of void main or in general, void is having a meaning nothing. ठीक है, उसको लिखा ही इसीलिए जाता है कि that main class is of a will not return anything. ठीक है, मेन क्लास आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. अगर मेन क्लास के सामने हम इंटीजर लिखते हैं तो मेन क्लास विल ओनली एंड ओनली रिटर्न इंटीजर वैल्यू. ठीक है, रिटर्न मीन्स नॉर्मल केस में हम बोलते हैं वापस लेना. जैसे आजकल जो एक ट्रेंड है, बर्थडे बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट्स मिलते हैं. ठीक है, हम किसी के बर्थडे पे जाते हैं तो उनको गिफ्ट देते हैं, वो आपको फिर रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं. तो रिटर्निंग इज समथिंग व्हाट दैट वी विल गेट्स द वैल्यू. अब वो किस पर्टिकुलर टाइप की रहनी चाहिए, दैट विल बी हैव टू डिफाइन फर्स्ट. इंटीजर, देन इंटीजर वॉइड मेन और इंटीजर मेन. then if there is a character then character main, or if there is a float then float main. generally integer ही return की जाती है. and then we have to write it down, the return 0 at the end of that main class के अंदर ही end में आप return 0 लिखते हो, right? then many of them also offer extended data types such as a long integer or long double. extended data types यानी ये डेटा टाइप्स के जो भी डेटा टाइप जो इंक्लूड किया गया है सी में, उसका सबसे पहले रीज़न ये था कि यूज़र जब डेटा देगा कंप्यूटर को या फिर सी प्रोग्रामिंग को, सो उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो. करेक्ट, उसको रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते हो आप कि यस यू हैव टू गिव ओनली दैट मच ऑफ डेटा. ठीक है, एंड फॉर फर्दर डेटा यू आर नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, जब भी आप कोई फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो तो वहाँ पे वैलिडेशन रहता है. वैलिडेशन इज व्हाट एग्जैक्टली, when you enter the name you can't enter the digit in that particular name text box. नेम के टेक्स्ट बॉक्स में आप डिजिट नहीं लिख सकते हो. जैसे मैंने कल बताया था 76 सिंह 78 सिंह, तो ये जो नाम है ये हम नहीं लिख सकते, उसमें आपको नाम ही लिखना पड़ता है. ठीक है, देन मोबाइल नंबर का जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है जिसमें मोबाइल नंबर आपको लिखना है, वहाँ पे आप 10 डिजिट से छोटा या 10 डिजिट के ऊपर मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते हो. that is what exactly the validation. So when the developer of a C that they knows that multiple data that should be handled by the C language, so they require the data types. but 5 जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है उससे भी अगर काम नहीं हो सकता है, उससे भी अलग डेटा जनरेट हो सकता है, so they use that concept of a long integer, then long double. So in case of a long, the size of a particular data that will be increased. ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये है कि कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर इसकी एक फिक्स साइज है. उससे भी ज़्यादा अगर चाहिए फ्लोटिंग की वैल्यू, देन डबल.
और उससे भी अगर ज़्यादा चाहिए then we can use a long int or long double, right? The various data types and the terminology used to describe them are given in the below figure. Now their ranges are given, right? तो उसकी जो एक पर्टिकुलर रेंज मैकेनिज्म है वो उन्होंने बताया है कि इंटीजर अगर टाइप है so that may be divided into the sign and unsigned, ठीक है? In case of a sign we are having a integer or short int or long int. Is that diagram is visible, this one? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मे भी थोड़ा सा उसका Yes, sir. कलर, आउटलाइन कलर थोड़ा सा उसका फेंट है. Then in case of integer itself there is a unsigned integer, unsigned short integer and unsigned long integer, right? So whenever there is a requirement we will use that particular terms, that signed integer, unsigned integer. Then the character is having the same phenomenon, that single character, then signed character, unsigned character, all are depending upon the sizes. Whenever that type of a data is required, जैसे हमको अभी पता है कि अगर हम मुझे आप लोगों का अगर डेटा लेना है बीइंग एज अ टीचर गार्डियन, ठीक है, तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? स्टूडेंट के नेम, फुल नेम, देन एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, देन 12th परसेंटेज, देन CET परसेंटेज, देन JEE परसेंटेज, देन गोल्स, आपके लाइफ में आपके गोल्स क्या है कि आप ड्यूरिंग इंजीनियरिंग आपको क्या सीखना है, दैट मीन्स अ शॉर्ट टर्म गोल. आफ्टर द इंजीनियरिंग what we have to achieve, either we have to go into the uh, corporate sector, in IT sector, means you want to join a one company, that MNC, कौन सी आपकी टारगेटेड कंपनी है? फॉर एग्जांपल इंफोसिस, TCS, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, ठीक है, एसेंचर, इसमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसमें आप जाना चाहते हो? ठीक है. If you're thinking about the civil and mechanical, their companies may be vary. Civil engineering है तो what you target to achieve after a 4 years, क्या target है आपका? Whether you have to go for a competitive exams, or whether you have to go for a private organization, or you have to work in the roof of one of the reputed company like L&T, सिविल इंजीनियरिंग में. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा, तो उसमें जो डेटा जनरेट होगा वो रहेगा कुछ डिजिट के बेस में, कुछ कैरेक्टर के बेस में, कुछ मे बी स्ट्रिंग के बेस में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द साइन एंड अनसाइन कैन बी डिफाइंड. So that data will be there. And if you taking the percentage, that जैसे मैंने 12th का लिया, 10th का लिया, या फिर CET JEE के स्कोर, so for that we require the floating point value, that float, double, long double, and the last one that we can say that void, that is a solo data type which we treated as a nothing, that means nothing to be written or nothing to be printed. Now this chart is very important in order to access the data types. जैसे कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, इनको अगर हमको एक्सेस करना है एंड वी हैव टू ऑल्सो मैनेज द मेमोरी. अगर मेमोरी को भी हमको मैनेज करना है, सो इन दैट केस you should know that the size in terms of the bits and in terms of the bytes, and what is the exactly range in which this particular data types lies, किस पर्टिकुलर रेंज में उनका ऑपरेटेबिलिटी है, वो ऑपरेट होते हैं, वो रेंज हमको अगर पता है देन वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप. सो स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर. सो कैरेक्टर इज ऑफ अ 1 बाइट. 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, दैट वी नो. 1 बाइट लगता है सिर्फ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए. द रेंज इज -128 टू द +127. ठीक है, यहाँ पे आप जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जीरो को हम सेंटर लेते हैं और जीरो के राइट और लेफ्ट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड तक हमारी रेंज रहेगी, राइट? सो द सिंगल कैरेक्टर इफ यू वांट टू स्टोर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, so it requires the size of 1 byte, that means 8 bit. Then unsigned character. Sir, Yes.
सर रेंज मतलब समझा नहीं। हाँ, range is just what when we want to store a particular single character. एक अगर कैरेक्टर हमको स्टोर करना है, कैरेक्टर रहो या फिर इंटीजर रहो या फिर जो भी लॉन्ग इंटीजर या फिर फ्लोट जो भी है डेटा टाइप, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में जो शेल्स या फिर मेमोरी में जो स्लॉट्स अवेलेबल किए जाते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी इन अ रेंज -128 to 127। जैसे अभी एक कैरेक्टर मैं अगर यूज करता हूँ कैरेक्टर एस, ठीक है, तो एस कैरेक्टर स्टोर करने के लिए मुझे जो साइज मिलेगी दैट साइज विल बी इन द रेंज ऑफ -128 टू 1+127, ठीक है। अब ये हो गया मेमोरी का पार्ट, वो जनरली हम डिसाइड नहीं कर सकते, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मीन्स इट इज कंप्लीटली डिसाइड बाय द CPU। बट when we say that the number, integer number, जैसे integer number that int that requires a 2 byte, so their range is representation range -2 to the power 15 to -2 to the power 15 minus 1, right, -2 to the power 15 to the +2 to the power 15 minus 1, right। तो ये जो रेंज है इसकी रेंज में आने वाला जो नंबर रहेगा, आर यू गेटिंग, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, द नंबर इज 1587, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक है। सो 1587, if you want to represent like this, okay, both screen are visible, यस सर। Yes, sir. okay, Yes, sir. okay, now in that case फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर, कैरेक्टर की जो रेंज उन्होंने बताई है, सो दैट विल बी द -128 टू +127। सो इसके बीच में जो कैरेक्टर के नंबर्स आते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंट विद द कैरेक्टर टाइप, क्योंकि यहाँ पे अनसाइन कैरेक्टर भी है जिसकी रेंज है 0 to 225। तो जब हम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी कैरेक्टर या फिर इंटीजर है उसका कन्वर्शन होगा बाइनरी में, करेक्ट। जैसे आस्की वैल्यू है, आस्की वैल्यूज जो हमारे पास है कैपिटल ए के लिए और स्मॉल ए के लिए। कैपिटल ए के लिए कल कितनी देखी थी हमने आस्की वैल्यू? 65. 65 60. और 97 आई गेस स्मॉल ए के लिए, करेक्ट। Yes, sir. यस, तो यस 65, सर। हाँ यस, 65 इज द आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, करेक्ट। this one and yes, so when we talking about the character which stores or which requires the size of a 1 byte, so ये 1 byte जब स्टोर होगा तो क्या आपको लगता है कि a स्टोर हुआ उसमें, राइट इसमें हमको क्या लगता है कि a स्टोर हुआ उसमें, बट is it a is understood by the system? a सिस्टम से सिस्टम उसको अंडरस्टूड कर पाती है क्या? नो, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट इन द बाइनरी फॉर्मेट। ये क्या है, ये बाइनरी फॉर्मेट में है क्या? नहीं, ये जब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, देन इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द सिस्टम, राइट। सब उसका इक्वेलेंस उन्होंने दिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो आस्की वैल्यूज है वो उन्होंने डिसाइड करके रखी है, दैट विल बी द 65। So when you enter the or when you hit the key A,
it will generate the character A. That means it will generate the ASCII code 65, and that will be converted into the binary, and that will be stored in your system. ठीक है, वो आपके क्या होता है, सिस्टम में स्टोर होता है. वो क्या हो जाता है, आपके सिस्टम में स्टोर हो जाता है. तो यहाँ पे -128 टू +127 जो भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, अगर मैं 65 के जगह पे यहाँ पे ट्रिपल ए लेता हूँ, फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए, ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट हैपन, single A is represented with the help of 65, another A is represented with the help of 65, and third A is also represented with the help of 65. So ये यहाँ पर तो आपको ये कंबाइन दिख रहे हैं, इट इज अ कंबाइन कैरेक्टर ए, ठीक है, कंबाइन, वो एक स्ट्रिंग बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है. बट ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर हम लेते हैं, so it will definitely creates the problem to convert that much of a ASCII value into the binary. वो पूरी की पूरी वैल्यू बाइनरी में अगर कन्वर्ट करनी है, ठीक है, तो वो उसकी रेंज वायोलेट हो जाती है, उस रेंज के बाहर चला जाता है, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी हैव टू यूज, इंस्टेड ऑफ द कैरेक्टर वी हैव टू यूज द स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग जब हम यूज़ करते हैं एज अ डेटा टाइप, ठीक है, तो उसकी साइज बदल जाती है. तो जैसे आपने सर्वेश ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट एग्जैक्टली दिस रेंज, that range is in between what character that we are giving, what number that we are giving as an input, that lies should be in that particular range. अगर वो उसमें है then it will justify the particular data type, otherwise that data type is not enough to justify the given particular data. जो भी डेटा आप एंटर करते हो उसमें वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी रेंज के बाहर का है, ठीक है. तो ये हम जब एग्जीक्यूट करेंगे एक आधा प्रोग्राम जहाँ पे हम इनपुट लेने वाले हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे 2 बाइट लेता है, ठीक है, इंटीजर 2 बाइट लेता है और जिसकी रेंज -2 to the power 15 टू +2 to the power 15 -1, ये जो रेंज है इसके आगे जाके, जैसे अगर मैं इंटीजर में एक मोबाइल नंबर देता हूँ 10 डिजिट का, उसमें एक और मोबाइल नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो क्या रिजल्ट देगा. सो इट विल क्रिएट द डेटा टाइप प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसमें नहीं आएगा 2 to the power 15, उसके आगे जाएगा वो, ठीक है. लेटर ऑन, इज दैट योर डिफिकल्टी सॉल्व, सर्वेश? Yes, sir. That range is used in between that particular character given or the integer given or the floating value given. तो उसके रेंज में ही आपका अगर डेटा रहता है तो वो टाइप आप यूज कर सकते हो. अदरवाइज वी हैव टू स्विच टू द अनदर डेटा टाइप Between the characters. between the characters. Then after unsigned integer there is a integer which requires a 2 byte, that is nothing but the 16 bits. ये हमेशा याद रखना है, यानी 1 byte 8 bit. अगर ये याद रह गया अच्छे से 1:8 का, ठीक है, बाइट बिट, बाइट बड़ा होता है बिट छोटा होता है, ठीक है, तो यानी वैल्यूज में नहीं साइज में. तो ये अगर हमारे याद में रहेगा, किलो बाइट बोलते हैं हम जनरली, के बी, किलो बाइट, किलो बिट नहीं बोलते, किलो बाइट, मेगा बाइट, देन टेरा बाइट, ठीक है, गीगा बाइट. सो बाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, ठीक है. देन unsigned integer which is having the range 0 to 2 to the power 16 minus 1. Then short integer -128 to +127, जो कैरेक्टर की है वही शॉर्ट इंटीजर की भी है, ठीक. देन अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 0 to 225, यानी यहाँ पे रिपीटेशन होते हुए दिख रहा है. आप उसको अगर रेंज एंड द डेटा टाइप इसको अगर कंपेयर करते हो तो कैरेक्टर इंटीजर, ठीक है, बाद में अनसाइंड कैर है और वो इक्वल है अनसाइंड कैर 0 to 225, दैट इज इक्वल टू द अनसाइंड शॉर्ट int. Then short int is compared with the character, both are same, right? Then long int, when there is a int only integer, so it requires a 2 bytes,
whereas long int that means it is a doubled. Okay, so that requires a 4 byte. पहले 2 थे, अब 4 हो गए. ठीक. Then the range is minus 2 to the power 31 to plus 2 to the power 31 minus 1. रेंज भी डबल ही हो गया ऑलमोस्ट. ठीक है, 15 डबल 30 हम बोलते तो 2 to the power 31 है, राइट, बिकॉज 2 to the power 0 से स्टार्ट होता है वो, इसकी वजह से. Then unsigned long integer that will be the same 4 byte, 0 to 2 to the power 32 minus 1. Then the float value that also requires a 4 byte, उसकी रेंज अब एक्सपोनेंशियल में आएंगे. जैसे हमने कल ई देखा था, ई को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं. और एक टर्म आई थी, एनीवन रिमेंबर? फ्लोटिंग इंटीजर वैल्यू, एनीवन? मैंटिसा कुछ तो भी आया था, मैंटिसा. Yes, sir. मैंटिसा क्या था वो? दिस वन, मैंटिसा ई एक्सपोनेंट. ठीक है, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन और इट इज अ नोटेशन. सो हियर वी आल्सो यूज द सेम वन, कैपिटल ई यूज कर रहे हैं हम. 3.4 ई माइनस 38 टू 3.4 ई प्लस 38. ओके, सो ये रेंज जो है ये कहीं कहीं पे भी पूछते नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, बट वी हैव टू रिमेंबर द साइज यूज बाय द पर्टिकुलर डेटा टाइप. ये जो है बीच में का कॉलम इन टर्म्स ऑफ अ बाइट, साइज इन बाइट्स, ये हमको रिमेंबर करना पड़ता है, वो हमको याद होना चाहिए. रेंज अगर याद होती भी है नहीं भी होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो फ्लोट इज हैविंग अ साइज 4 बाइट विच उसकी रेंज है 3.4 ई माइनस 38 टू 3.4 ई प्लस 38. देन डबल, अब ये डबल यानी फ्लोट का डबल हो गया, राइट. जैसे इंटीजर का डबल हम नहीं बोल सकते, उसको लॉन्ग इंटीजर बोला उन्होंने. सो लॉन्ग हो गया तो 16 बिट का 32 बिट हो गया था, 2 बाइट का 4 बाइट. एंड यहाँ पे फ्लोट पे 32 बिट का 64 बिट हो गया एंड 4 बाइट का 8 बाइट हो गया, राइट. और ये डबल का अगर हम लॉन्ग डबल करते हैं सो दैट इज हैविंग अ 10 बाइट्स, मीन्स इक्वलेंट टू द 80 bits, right. So mainly that we want to consider integer, character, then float, then double. ये चार ही हम मोस्टली यूज करते हैं. और उसकी जो साइज है, that character is having a 1 byte, integer is having the 2 byte, float is having a 4 byte and double is having a 8 byte. Okay, so that we have to remember only 4. और रेंज अगर हम याद कर सकते हैं तो 2 या 3 की अगर रेंज हमने याद कर ली तो उससे हम कंपेयर करके और 2-3 की रेंज या फिर सेम है इसकी वजह से हम डेफिनेटली उसको कैलकुलेट या फिर रिमेंबर कर सकते हैं, राइट. वैसे रेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. Sir, यस. sir, बोला. hello, sir, your voice is breaking. Is that voice is breaking? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay. Somewhere it may be that breaking that particular voice, no problem. So I will repeat it again, that the range is not that much of important, but size in terms of bytes or the bits that is required and that we have to remember. So character that requires a 1 byte, integer requires a 2 byte, then float requires a 4 byte and double requires a 8 byte. ऐसे अगर हम ध्यान में रखते हैं, कैरेक्टर जो है 1 का 2 टाइम्स अगर किया तो इंटीजर हो जाएगा 1 + 1, ठीक है. सो वो हो जाएगा 2 बाइट. उसका अगर फिर से 2 टाइम्स कर दिया हमने तो हो जाएगा 4 बाइट, और 4 का अगर 2 टाइम्स कर दिया तो हो जाएगा डबल 8 बाइट, ठीक है. तो ये आप इजीली याद रख सकते हो. 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 3. जो हम नंबर सिस्टम में करते थे ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3,
तो सिमिलरली वही है, पहले आता है कैरेक्टर, बाद में आएगा इंटीजर, बाद में आएगा फ्लोट एंड बाद में आएगा डबल, राइट। देन derived data types, the name itself indicates that this data type is not at all present earlier, later whenever it is required they are getting derived, ठीक है, उसको बनाया गया है जब जैसी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से, राइट। those data types which are derived from the fundamental data types are called as a derived data types, यानी fundamental जो data types हैं कौन से, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है एंड वाइड है, ठीक है, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अनसाइंड, साइंड, लॉन्ग और डबल ये उसके फ्रेगमेंटेशंस हैं, सब टाइप्स हैं। देन these are called as the derived data types. Functions, arrays and pointers are derived data types in C language. For example, an array is derived data type because it contains the similar type of a fundamental data types and act as a new data type for a C. इसके पहले भी हमने array की एक छोटी सी definition देखी थी, short एक view देखा था array का. Array is nothing but the collection of a similar data type stored in a consecutive memory allocation, right. वन बाय वन उसको स्टोर करते हैं हम, जैसे एग्जाम में होता है, करेक्ट। आपने कभी देखा होगा कि ऑफलाइन एग्जाम में 12th के बच्चे अगर एक लाइन में बैठे हैं वन बाय वन, ठीक है, तो एक ग्रुप रहेगा, समझो फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर है, सभी एक लाइन में बैठेंगे वन बाय वन, फिर नेक्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ओके। केमिस्ट्री का भी ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, then English, which are common subject, in that case no problem, all are same. But when it comes for the vocational subject, ठीक है, जैसे अगर कोई अमरावती से अगर रूरल इंस्टीट्यूट से है क्या कोई, रूरल इंस्टीट्यूट, एनीवन और एनीवन नोज द रूरल इंस्टीट्यूट, स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालय पंचवटी, Yes, sir. Yes, sir. पंचवटी अमरावती, Yes, sir. आएगा कोणी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मी आहे सर. Sir, I am. यस, मी आहे. सुशील, अजून उज्ज्वल उज्ज्वल, अजून उज्ज्वल. okay, no problem. So they know there are several branches. स्कूटर मोटर मेंटेनन्स आहे, तर मी होतो. Yes, sir. येस. Yes, sir. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिकल मी मेंटेनन्स, होतो सर. येस, मेकॅनिकल, Yes, देन yes, सिव्हिल, देन yes, कम्प्युटर sir. अँड देन इलेक्ट्रॉनिक्स, राईट. Yes, sir. These are the branches Hmm. which are available in 11th 12th. I guess only in Vidarbha, Swatantra Kanishta Mahavidyalaya means rural institute is the one in which all these branches are available in 11th and 12th. Otherwise these branches, Yes, sir. स्कूटर मोटर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में नहीं है क्योंकि वो मैकेनिकल का ही पार्ट जाता है, और बस एक ही ब्रांच है, बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये जो ब्रांचेस है वो तो इंजीनियरिंग में भी अवेलेबल है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर पेपर जो 12th में रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, अलग अलग बच्चे रहेंगे, ठीक है, अलग अलग जो उसको कौन सा पेपर बोलते हैं, दैट पेपर इज ब्रांच वाइज पेपर, करेक्ट. एक्चुअली मैं उसका नाम भूल गया, vocational subject, exactly, it is a vocational subject. Even if Brijlal Biyani, then Shivaji Science, Vidya Bharati, they also having this branch like computer, electronics, I don't know, but IT कुछ तो भी ऐसे 2-3 ब्रांच है उनके यहाँ पे. बट जो पंजाब राव देशमुख शिवाजी संस्थान है, उनका जो रूरल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसी पर्टिकुलर कॉलेज में ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं. जब ये बच्चे सभी के सभी 12th के लिए अपियर होते हैं, ठीक है, so what exactly happened when they appear for the examination, they will be sit in a one row. अगर स्कूटर मोटर मेंटेनेंस वाले हैं तो वो सारे के सारे एक ही लाइन में बैठेंगे, उनके बीच में कोई कंप्यूटर वाला नहीं आएगा, कोई मैकेनिकल वाला नहीं आएगा, ठीक है.
और या फिर ऐसा नहीं होगा कि एक कंप्यूटर का, एक आईटी का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक स्कूटर मोटर मेंटेनेंस का, एक सिविल का. इट इज नॉट लाइक दैट. If it is, then it is a heterogeneous data or heterogeneous system of a student sitting position. होमोजीनियस अगर चाहिए आपको, तो आपको एक लाइन में सारे के सारे कंप्यूटर के बच्चे बिठाने पड़ेंगे, फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बिठाने पड़ेंगे, फिर सिविल के, फिर अलग अलग ब्रांचेस के. सो सिमिलरली इन आवर केस, हमारी जब एग्ज़ाम होगी, क्योंकि मैंने 12th का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये सब ने आपने एग्ज़ाम दी हुई है. फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जब एग्ज़ाम होगी, अब ये ऑनलाइन होगी वो बात अलग है, बट ऑफलाइन अगर होती है, ठीक है, तो उस केस में भी रोल नंबर्स जो आपको अलोकेट किए जाते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रुप्स. ग्रुप ए वाले फर्स्ट स्टूडेंट से लेकर तो लास्ट स्टूडेंट तक एक ही रो में रहेंगे. रो मीन्स क्लासेस अलग अलग रह सकते हैं, उनके चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास, डिपेंडिंग ऑन द बेंचेस, डेस्क, बट वो कॉन्जिक्यूटिवली ही रहेंगे. और इमीडिएटली बाजू की जो रो रहेगी वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली ग्रुप बी वाले बच्चे रहेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे एक मिक्स नहीं कर सकते कि एक ग्रुप ए वाला होगा, फिर ग्रुप बी वाला, फिर ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी. तो ये जो रहेगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, अगर ऐसा डेटा है, कभी डेटा टाइप इंटीजर, कभी डेटा टाइप फ्लोट, कभी कैरेक्टर, कभी स्ट्रिंग, कभी लॉन्ग, कभी डबल, अगर ऐसा डेटा टाइप अगर रहता है तो उस केस में आप एरे यूज नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई द एरे इज हैविंग अ डेफिनेशन. इट इज अ similar data type, collection of a similar data type elements which are stored in a consecutive memory location, means one by one. अगर आपको मिक्स डेटा टाइप अगर चाहिए, ठीक है, मिक्स वेज अगर चाहिए सब्जी, ओके, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज समथिंग अदर, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर, जो हमारा 6th यूनिट है. तो स्ट्रक्चर जो रहेगा जिसमें आप ये यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर यूनियन वगैरह अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, मेथड्स है. In that case we can use the mixed data type elements. But when we are talking about the derived data type, inside that there is a 3 derived data types, that are the functions, arrays and pointers. That the arrays is what exactly the collection of a similar data type stored in a consecutive memory location, so that are added and they are derived from the fundamental data types. ये सभी के सभी data types जो बने हैं derived data types, that are made from a fundamental data types. Then last point of a data type, that is a user defined data types. Those data types which are defined by the user as per his or her will be called as user defined data types. An example of such data types are structure, union and enumeration. ठीक है, enumeration तो सबसे आखिरी टॉपिक है ऑफ 6 यूनिट का, बट स्ट्रक्चर यूनियन जो है वो 6 यूनिट के स्टार्टिंग में है. That is what a derived data type, or sorry, it is user defined data type, and they are mostly used as per the data required by the end user or the user. प्रोग्रामर या फिर यूजर को जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से उसकी यूटिलिटी डिफाइन की जाती है स्ट्रक्चर एंड यूनियन की. वेयर एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स दे आर मोस्टली यूज. पॉइंटर का कंसेप्ट हम यूज करते हैं जनरली मोबाइल फ़ोन में. जब आप किसी का नंबर ढूंढते हो तो वो बहुत क्विकली आपके सामने वो नंबर आ जाता है. जस्ट वी हैव टू टाइप एनी अल्फ़ाबेट, एनी कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टर अगर आप टाइप करते हो तो इमीडिएटली वो सीरीज आपके सामने आ जाती है. करेक्ट. सो दैट इज़ व्हाट अ पर्टिकुलर पॉइंटर. और इवन इफ डिक्शनरी, पता है डिक्शनरी, Yes, sir. Yes, sir. इंग्लिश की डिक्शनरी, Yes, sir. एक लगभग 10 साल पहले, 10-12 साल पहले टेलीफोन की भी डिक्शनरी आती थी, जिसमें जितने भी शहर में टेलीफोन होंगे उन लोगों के नाम और नंबर्स, और शायद कुछ एड्रेस, एड्रेस लाइन भी 1 या 2 वर्ड्स में वो भी रहती थी उसमें. टेलीफोन Sir, directory. डायरेक्टरी, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, डायरेक्टरी. ठीक है. और डिक्शनरी जो रहती है वो हमारे इंग्लिश वर्ड्स या फिर मराठी जो भी लैंग्वेज की डिक्शनरी होंगी वो. तब उसमें अगर आपको कुछ ढूंढना है तो क्या हर पेज को आप टर्न करते 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 ढूंढते हो क्या? No, sir. Certainly No, not. sir. They will have the
इंडेक्सिंग, बराबर है, कि भाई अल्फ़ाबेट ए कहाँ से स्टार्ट होता है, बी, डी, एक्स, डब्ल्यू या फिर जी, एच कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका इंडेक्सिंग दिया हुआ रहता है पहले पेज पे, डायरेक्टरी पे, या फिर आपकी जो डिक्शनरी रहते हैं उसमें भी वो रहता है। इवन इफ आप जब कोई कंटेंट अगर ढूंढना है, आपकी जो बुक है, बुक में पहला जो पेज है जहाँ पे कंटेंट्स हैं, वहाँ पे आपने कुछ कंसेप्ट अगर ढूंढना है, ढूंढ लिया, तो मे भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट बुक की जो एंड है, कोई भी बुक, कोई भी बुक जो स्टैंडर्डाइज ऑथर की है, बुक का जो एंड है जिसके पीछे इंडेक्स रहता है, तो उसमें ए से, बी से, सी से, डी से, ऐसा करते करते एक्स वाई जेड डब्ल्यू तक, ठीक है, सभी के सभी स्मॉल कंसेप्ट्स कौन से पेज पे अवेलेबल है वो दिया हुआ रहता है। पहले पेज पे तो बुक के कोई भी कंटेंट रहते हैं और सबसे आखिरी में इंडेक्स रहता है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर पॉइंटिंग दैट पर्टिकुलर डेटा विच इज प्रेजेंट ऑन दैट पेज, दैट इज द रोल ऑफ अ पॉइंटर, कि वो ऐसे दिखाता है, एरो दिखाता है कि उस पर्टिकुलर पेज पे जाओ आप, वहाँ पे जाके आपको वो मटेरियल मिल जाएगा। सिमिलरली आपकी मोबाइल में भी जो भी नंबर आपको एक्सेस करना है, वहाँ पे भी कंसेप्ट वही यूज़ होता है कि पॉइंटर से आप उसको ईजिली ट्रैक आउट करते, फाइंड आउट करते हो। डेटाबेस में और सी लैंग्वेज में पॉइंटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अ पॉइंटर जो भी डिराइव्ड डेटा टाइप है, सी इज़ मच मोर पॉपुलर, सी पॉइंटर की वजह से बहुत पॉपुलर भी हुई, और पॉइंटर की ही वजह से पिछले कुछ सालों से सी बदनाम भी हुई है, ठीक है। ये बहुत बड़ी आयरनी है रिलेटेड टू द सी लैंग्वेज, कि जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से सी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और नेम एंड फेम भी मिला, उसी वजह से फिर आगे जाके उसको बदनामी बदनामी भी मिली, और जिसकी वजह से सी प्लस प्लस में या फिर उसके आगे वाले लैंग्वेजेस में पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं रखा है, उसमें है ही नहीं वो कंसेप्ट। बिकॉज इफ़ यू नो द नंबर, जो डायरेक्टरी है उसमें सभी के नंबर रहते हैं, तो अब उसको नंबर कहाँ पे है उनका या फिर क्या नंबर है वो अगर पता चल गया, आप तो उनको कॉल करके आप उनको डेफिनेटली परेशान कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ अगर आपके जो पासवर्ड्स हैं वो भी पॉइंटर के थ्रू एक्सेस होते हैं, आपने आपका फेसबुक का पासवर्ड सेट किया है और वो फेसबुक के जो भी सर्वर होगा वहाँ पे स्टोर है, अगर मुझे वो पर्टिकुलर या फिर किसी हैकर को वो अगर पर्टिकुलर पाथ पता चल गया, उस पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ पासवर्ड स्टोर्ड है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो वो मैं पासवर्ड फेच कर लूँगा। इतना इजी नहीं है, बट इफ़ इट इज़ मेड, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा होता था, पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता था फॉर इजी एक्सेस ऑफ अ डेटा, एंड लेटर ऑन इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, उसी पॉइंटर की वजह से प्रॉब्लम रेज होने चालू हो गई। जैसे कोई चीज़ अच्छी भी होती है तो उसके बुरा इस्तेमाल करने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम चालू हो गए, और लेटर ऑन दैट पॉइंटर इज रिमूव्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसमें वो नहीं है, उसके अल्टरनेट कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो रिमूव हो गया। बट वो कंसेप्ट पॉइंटर का जो दिया गया था डिराइव्ड डेटा टाइप में, वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से पॉजिटिवली जो काम करने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो कारगर साबित हुआ था पॉइंटर का कंसेप्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट डेटा टाइप्स। देन we will move towards the operators. We will deal with that particular operator type or types of one C token in detail in the third unit also. थर्ड यूनिट में भी इसी को हम रिपीटेडली देखने वाले हैं, दैट्स वाई वी हैव अ वेरी शॉर्ट समरी ओवर हियर इन केस ऑफ सेकंड यूनिट। Operator in a C are a special symbol used to perform the functions. The data item on which the operators are applied are known as operands. Operators are applied between the operands. Depending on the number of operands, operators are classified as follows. It's just like that when you have to do the addition of two numbers. So the sign in between these two number is what a operator, and वो साइन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो है, ठीक है, दीज आर द ऑपरेंड्स, ठीक है।
जैसे हम बोलते हैं a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू c. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. When we are talking about that a Yes, sir. plus b, ठीक है. अब ये a plus b जो है तो उसमें c that is nothing but the output, a and b these are the inputs. So this input is treated as a operands and they are going to be operated with the help of a plus operator, that is nothing but the arithmetic operator, जिसको हम क्या बोलते हैं arithmetic operator, वो आगे जाके हम देखेंगे. But in normal terms when we are talking about the C operator, that is what it is, a sign or it is one special character or special symbol we can say that, which will be applying on the operands so that operand will be change their behavior, right? So that is what exactly the C operator. Now there are several classifications depending upon the data. That unary operator, okay, that means single. Unary means a single, then binary means 2, ternary means 3. So unary operators is an operator applied to the single operand. ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि हमेशा ऑपरेंड ऑपरेटर जो रहता है तो ऑपरेटर के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं 2 ऑपरेंड्स सो दैट उसकी कैलकुलेशन हो सके. बट सी लैंग्वेज इज द वन एक्सेप्शन ओवर that there is a single operand that can be operated with the help of a unary operator. कैसे? So that can be managed with the help of an increment operator and the decrement operator or the size of. तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये ले सकते हैं, ये i है, इसके पहले हमने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस प्लस i, that means increment of a i before it is getting stored into the memory. प्लस प्लस i का मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही आपको i की वैल्यू मिल जाएगी, यूजर देगा या फिर आप खुद डिसाइड करोगे, दैट इज अ 5. अब वो स्टोर होने के पहले ही उसको आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्री इंक्रीमेंट. दिस इज अ प्री यानी पहले का. प्लस प्लस i मीन्स प्री इंक्रीमेंट. So the value of I, if it is a 5, we will increment it as a 6 plus plus 1, यानी प्लस प्लस यानी एक बार इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगी 6 and then it will stored into the variable I. If we are saying that I, small I प्लस प्लस, ठीक है, पहले हमने प्री इंक्रीमेंट लिया, अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ले रहे हैं. बोथ आर अ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑपरेंड एक ही है आई, और ये जो स्पेशल सिंबल है प्लस प्लस, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं. सिर्फ पहले प्लस प्लस आई लिया, दैट मीन्स प्री इंक्रीमेंट. आई प्लस प्लस लिया यानी बाद में लिख रहे हो आप प्लस प्लस, तो वो हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट. तो उस केस में क्या होगा, जब वैल्यू ऑफ आई is given as a 5, ठीक है, it is stored into the memory. Later on when we are executing the next line after this, ये i plus plus के बाद जो भी next line होगी वहाँ पे जब i की वैल्यू आप एक्सेस करोगे, in that case it will generate as a value 6. इसके ऊपर बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग है हमारी इसमें सिलेबस में. For that I am explaining this particular part, pre increment and post increment, right? Up till for till we can just consider that जैसे ही पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन पहले आ गया उसको प्री बोलते हैं, और जैसे बाद में आ गया उसको हम पोस्ट बोलते हैं, राइट? सो बोथ कैन बी वर्किंग अंडर द हेड ऑफ अ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है. देन देर इज अनदर, दैट इज अ साइज ऑफ, कितनी साइज होनी चाहिए, ठीक है. एक आधा पर्टिकुलर वेरिएबल है तो उसको अगर आप लिमिट करना चाहते हो कि उसने इतनी साइज लेनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है. जैसे मोबाइल नंबर ने 10 ही डिजिट लेने चाहिए, 11 डिजिट नहीं लेना चाहिए, या फिर 9 डिजिट भी नहीं लेना चाहिए, राइट? या फिर कुछ फॉर्म्स रहते हैं, ऑफलाइन फॉर्म्स, वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहता है, बॉक्सेस रहते हैं लिटरली नेम लिखने के लिए, हर एक बॉक्स में एक कैरेक्टर लिखना पड़ता है. तो उस केस में हमको
बहुत बार हमारा नाम जो है वो नहीं बैठता है तो हम उसको शॉर्टकट कर देते हैं, ठीक है। मोस्टली हम फर्स्ट नेम लिखते हैं, मिडल नेम को शॉर्ट कर देते हैं एज इनिशियल, देन सरनेम लिखते हैं, राइट। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस, मीन साइज ऑफ, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूनियरी ऑपरेटर। देन नेक्स्ट वन इज द बाइनरी ऑपरेटर. In case of binary operator, there are multiple types, and these binary operators are mostly operated on a two operands. Unary operator जब बोलेंगे आप तब उसमें रहेगा single operand, and when we are talking about the binary operator, that is a two operands. So it is getting divided into the arithmetic operators, relational operator, shift operator, logical operator, bitwise operator, conditional operator, and assignment operator. So total 7 operators are there under the binary operator. Unary operator में plus plus I, minus minus I plus plus, I minus minus, 4 types, that is okay. But in case of binary there are 7 types: arithmetic, relational, shift, logical, bitwise, conditional, and assignment, right? So that all operators we will complete in a थर्ड यूनिट, ठीक है। अगर सेकंड यूनिट में ये क्वेश्चन आता है 13 मार्क्स के लिए, देन वी कैन हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स इंडिविजुअली। सभी के लिए आपको लिखना है एग्जाम्पल्स और उसका डिस्क्रिप्शन, 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन और 1 लाइन का एग्जाम्पल, दैट्स इनफ। अगर 13 मार्क्स के लिए आता है तो सी टोकन के ऊपर क्वेश्चन, अगर 7 मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ आपको उसके यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर इतने ही लिखने हैं, ठीक है। Then the sixth one, I think it is a last one. Yeah, exactly. It is a last special character. ठीक है, last type of a C token, that is a special character. So before that we will start counting how many types are there in a C token. Can anyone start? कितने types है C token के अंदर? पहले कौन सा देखा था हमने? Are you Sir, there? keyword. हाँ है ना, मुझे लगा कि Keyword. कोई है ही नहीं. Okay, first one is the keywords. Then कुछ तो भी आइडेंटिफाई करना था. Identifiers. आइडेंटिफायर्स, एग्जैक्टली. देन थर्ड Constants. कॉन्स्टेंट्स, फिक्स वैल्यू. देन फोर्थ Strings. वेरिएबल्स. पहले कांस्टेंट आ गया तो फिर वेरिएबल्स आएगा, राइट. देन स्ट्रिंग्स, देन Data types. डेटा टाइप्स, Operator. देन अभी आपने देखा ऑपरेटर, Operation. ऑपरेटर, Operator. ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज द स्पेशल कैरेक्टर. Yes. Okay, so keyword, identifier, variable, constant, string, then data type, then operator, and then special character. ठीक है. So some special characters are used in C and they have a special meaning which cannot be used for the another purpose. यानी ये keyword जैसे ही है. कीवर्ड आप किसी और यूज पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हो. उसी प्रकार से उनका बोलना है कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट ऑल्सो यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज विच आर डिफाइंड बाय द डेवलपर. जो डेवलपर ने उसको डिफाइन करके रखा है सी की लाइब्रेरीज में, उसके सिवा वो यूज नहीं होंगे. जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट्स. ये जनरली एरे में यूज होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है. देन सिंपल ब्रैकेट्स, ये हम मेन के बाद यूज करते हैं या फिर प्रिंट एफ में यूज करते हैं, स्कैन एफ में यूज करते हैं, ठीक है. इट इज यूज इन द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, दैट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन. प्रिंट एफ ये जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको आप खुद डिफाइन नहीं करते हो, ये यूजर डिफाइंड नहीं है, इट इज अ प्री डिफाइंड. उसका मीनिंग जो है प्रिंट एफ का, इन ऑर्डर टू प्रिंट द कंटेंट इन बिटवीन द डबल कोट्स, जो भी डेटा डबल कोट्स में है उसको प्रिंट करो. ये जो मीनिंग है, ये मीनिंग ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वो हम नहीं सेट करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्री डिफाइंड फंक्शन. सो इनसाइड दैट द सिंपल ब्रैकेट्स आर यूज्ड. देन द कर्ली ब्रेसेस, दैट एवरीवन नोज, ठीक है. इसके सिवा तो हमारा सी लैंग्वेज अधूरा है,
ठीक है. ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर वेरी मच नेसेसरी. It is used in the opening and closing of the code. It is used in the opening and closing of the loops also. ठीक है. loops अगर हम देखते हैं कि for loop है, do while loop है, बाद में अलग अलग प्रकार के जो ये हम यूज़ करते हैं, फंक्शंस करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, उसके जो लूप्स है उसमें हम वहाँ पे यूज़ करते हैं करली ब्रेसेस. अगर ओपनिंग है तो क्लोजनिंग भी रहेगा ही, सिंगल कभी भी यूज़ नहीं किया जाता. ठीक है. देन द comma that separates or that separating the for the more than one statement. For example, separating the function parameter in a function call, separating the variable when printing the value of a more than one variable using the single printf statement. जैसे हमने डिक्लेयर किए थे सम, ये जो हमारा सम डॉट सम वाला जो प्रोग्राम है, इसमें बहुत से आपको कंटेंट दिख जाएंगे. Right. So here we have this comma. ठीक है. ये curly brackets. ठीक है. Then this is a simple braces. Right. These are the special characters. Then hash or the preprocessor. That hash or preprocessor, these all are used. It is used for a preprocessor directives, and it is basically denoted that we are using the header file. ये जब हम यूज़ करते हैं hash, so it is used to pretend that we are using the header file, and that header file should be included into the program. Then asterisk sign, star, this symbol is used to represent the pointer and also used as an operator for a multiplication. अगर हम यहाँ पे प्लस के जगह पे स्टार लिख देते हैं तो it is used for a multiplication, otherwise it is also used for a pointer concept. Right. Then tilde, एक tilde ऑपरेटर है. वन आपके कीबोर्ड में जब 1 2 3 4 लिखे रहते हैं, उसके बाजू या फिर एस्केप बटन के नीचे जो ऑपरेटर बटन है, दैट इज tilde ऑपरेटर विच इज यूज फॉर अ डिस्ट्रक्टर टू फ्री द मेमोरी. ये ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो जो भी मेमोरी अलोकेट की गई है वेरिएबल को, वो डी अलोकेशन का काम करता है, यानी डिस्ट्रक्टर का काम करता है. ठीक है. Then dot, single dot, it is used to access the member of a structure or a union. That was a completely part of the 6th unit where we can study that particular meaning of a dot. So these are the some of the special symbols. Out of that, most of the symbols that we know, square bracket है, simple brackets है, curly braces है, comma है, semicolon भी उसमें रहना चाहिए था but नहीं है. Okay. हैश प्रीप्रोसेसर है, एस्ट्रिक साइन है स्टार वाला, बाद में टिल्ड ऑपरेटर है या फिर टिल्ड साइन है, बाद में डॉट, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. राइट. सो दिस ऑल अबाउट द सी टोकन्स. राइट. सो सी टोकन इज नथिंग that keywords, identifiers, then constants, then string, special symbols and the operators. ठीक है. तो ये डायग्राम हमको अगर रिमेंबर रही तो उसके हिसाब से उसके सब टाइप्स भी धीरे धीरे हम याद कर सकते हैं. ओके. सो अप टिल नाउ एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? नो सर. रिगार्डिंग टू सी टोकन्स, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वंस वी अंडरस्टूड C tokens, we can enter into the world of actual programming. डायरेक्ट हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रिंट अ मैसेज, देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, देन मैथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं आप. वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी कैन डू वंस वी नो द सी टोकन्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे यूज़ करनी थी. और अगर हम ये पता ही नहीं था हमको कि हम हैश किसको बोलते हैं, या फिर स्पेशल सिम्बॉल्स क्या रहते हैं, वेरिएबल क्या रहता है, डेटा टाइप क्या रहता है, उसकी साइज़ क्या रहती है, रेंज क्या रहती है, इफ़ यू डोंट नो and directly we are doing the programming, so it is very difficult to understand that particular program. That's why I switch from subroutine. पहले हम subroutine लेने वाले थे, बट वहाँ से स्विच किया हमने डायरेक्टली सी टोकन्स के ऊपर,
एंड देन वी कैन डू द सब रूटीन. हम अगले लेक्चर में सब रूटीन देख सकते हैं आफ्टर होली, राइट. सो इफ देर इज नो डिफिकल्टी, then shall we move for